Dear students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain chapter number 6, that is The Earth is Not Ours, from your book The Panorama of Life, Class 11, Punjab School Education Board in Hindi. I hope you will watch the video till end and will better understand the lesson. So let us begin with the explanation. In a partly symbolic gesture in 1998, the General Assembly of the United Nations organizations decided that its 55th session would be designated the Millennium Assembly of the United Nations. This Millennium Summit was held from 6 to 8 September 2000. 1998 में आंशिक तौर पर प्रतीकात्मक कार्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने यह फैसला किया कि 55वें सेशन का नाम संयुक्त राष्ट्र की सहस्रावधि सभा रखा जाएगा। यह सहस्रावधि सम्मेलन 6 सितंबर से 8 सितंबर 2000 तक करवाया गया। द फॉलोइंग पैसेज इज an extract from the inaugural address given by Kofi Annan, the Secretary General of the UNO. ये जो निम्नलिखित गद्यांश है ये यूएनओ के उस समय के सेक्रेटरी जनरल कॉफी अन्नान द्वारा दिए गए उद्घाटनीय भाषण का अंश है। The millennium might have been no more than an accident of the calendar, but you, the government and peoples of the world, have chosen to make it more than that, an occasion for all humanity to celebrate and to reflect. यह सहस्त्रवादी कैलेंडर से बढ़कर कुछ और ना हुआ होता, पर आपने संसार की सरकारें और लोगों ने इसे उससे कुछ और ज़्यादा बनाने का फैसला किया है। पूरी मानवीय जाति के लिए जश्न मनाना और चिंतन करने का एक मौका। If one word encapsulates the changes we are living through, it is globalization. यदि उन परिवर्तनों जिनमें हम निकल रहे हैं का सार एक शब्द में देना हो तो इसे विश्वीकरण कहा जाएगा। We live in a world that is interconnected as never before, one in which groups and individuals interact more and more directly across state frontiers, often without involving the states at all. हम एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं जो कि आपस में इतना ज़्यादा जुड़ गया है जितना पहले कभी नहीं था। ऐसा संसार जिसमें वर्ग एवं भिन्न भिन्न व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रों की हदों के पार एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, अक्सर राष्ट्रों को इसमें शामिल किए बिना। This has its dangers, of course: crime, narcotics, terrorism, disease, weapons. All these move back and forth faster and in greater number than in the past. People feel threatened by events far away. विश्वीय निसंदेह इसके अपने खतरे हैं। जुर्म, नशीले पदार्थ, आतंकवाद, हथियार, ये सभी चीज़ें पहले के मुकाबले जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा गिनती में आने लगी हैं। लेकिन इसका मतलब असर क्या हुआ है? लोग बहुत दूर होने वाली घटनाओं से भी आतंकित होने लगे हैं। But the benefits of globalizations are obvious too. लेकिन जो विश्वीकरण है उसके लाभ भी स्पष्ट हैं। Faster growth, higher living standard and new opportunities. ज़्यादा तेज़ी से उन्नति, जीवन यापन का उच्च स्तर और नए मौके। Not only for individuals, केवल व्यक्तियों के लिए ही नहीं, but also for a better understanding between nations and for common actions. बल्कि राष्ट्रों में आपसी सूझबूझ और मिलकर काम करने के लिए भी। One problem is that at present these opportunities are far from equally distributed. एक समस्या यह भी है कि वर्तमान में यह मौके समान रूप से बांटे जाने से बहुत दूर हैं। How can we say that the half of the human race which has yet to make a received telephone call
let alone use a computer, is taking part in globalization. We cannot without insulting their poverty. हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मानव जाति का केवल आधा हिस्सा विश्वीकरण में भाग ले रहा है, जिसने दूरभाष पर कभी बात नहीं की और ना ही सुनी है। कंप्यूटर का प्रयोग करने की बात तो छोड़ ही दें। हम ऐसा उनकी गरीबी का मजाक उड़ाए बिना नहीं कह सकते। The overarching challenge of our times is to make globalization mean more than bigger markets. हमारे लिए समय की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विश्वीकरण का अर्थ सिर्फ बड़ी मंडियों तक ना रखकर इसे और विशाल बनाया जाए। To make a success of this great endeavor, we must learn how to go on better and above all, how to go on better together. इस महान क्रांति को सफल बनाने के लिए हमें यह अवश्य सीखना पड़ेगा कि बढ़िया शासन कैसे चलाया जाए, और सबसे बड़ी सीखने योग्य बात यह होगी कि किस तरह इकट्ठे मिलकर शासन चलाया जाए। What are these global issues? यह विश्वव्यापी मुद्दे कौन से हैं? I have grouped them under 3 headings. मैंने इन्हें निम्नलिखित 3 शीर्षकों में बांटा है। Each of which I relate to a fundamental human freedom, जिनमें से मैंने हर एक को बुनियादी मानवीय स्वतंत्रता के साथ जोड़ा है। Freedom from want, तंगी से मुक्ति, freedom from fear, डर से मुक्ति, and the freedom of future generations of sustain their lives on this planet, और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस ग्रह पर अपना जीवन बनाए रखने की स्वतंत्रता। फर्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम वांट। अब पहली, तंगी से मुक्ति। इसके बारे में हम करेंगे कि ये मुक्ति किस चीज़ से जो है वो दी जानी चाहिए। How can we call human being free and equal in dignity when over 1 billion of them are struggling to survive on less than $1 a day? कहते हम मनुष्य को स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठा में बराबर कैसे रख सकते हैं, जबकि उनमें से 1 अरब लोग $1 से भी कम पैसे में गुजारा करने के लिए और जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हों। Without safe drinking water and when half of humanity lacks adequate sanitation, उन्हें सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं है, और जबकि पूरा मानव जाति के आधे हिस्से को ज़रूरी सफाई सहूलतों की भी कमी है। Some of us are worrying about whether the stock market will crash or struggling to master our latest computer, while more than half of our fellow men and women have much more basic worries, such as where their children's next meal is coming from. हम में से कुछ लोगों को यह चिंता रहती है कि शेयर बाजार गिरेगा या नहीं, या हमसे कुछ अपने अत्यधिक आधुनिक कंप्यूटर के विशेषज्ञ होने का प्रयास करते हैं, जबकि हमारे साथी पुरुषों एवं स्त्रियों में आधे से ज़्यादा तो बुनियादी चिंताएं रखते हैं, जैसे कि उनके बच्चों के लिए अगला भोजन कहाँ से आएगा। द सेकेंड मेन हेडिंग इज फ्रीडम, और दूसरा जो मुख्य शीर्षक है वह है फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। Wars between states and mercifully less frequent than they used to be. सौभाग्यवश राष्ट्रों के मध्य पहले के मुकाबले युद्धों में कमी हुई है। But in the last decades, internal wars have claimed more than 5 million lives and driven many times that number of people from their homes. पर पिछले दशक में आंतरिक युद्धों ने 50 लाख से ज़्यादा जानें ले ली हैं, और इस संख्या से कहीं अधिक लोगों को उनके घरों से बेघर कर दिया गया है। We still live under the shadow of weapons of mass destruction. इसके अतिरिक्त हम अभी भी लोगों का नाश करने वाले हथियारों के साए में जी रहे हैं।
We must do more to prevent conflicts happening at all. हमें कोशिश करनी होगी कि झगड़े बिल्कुल ही पैदा ना हों. Most conflicts happen in poor countries, especially those which are badly governed or where power and wealth are very unfairly distributed between ethnic or religious groups. अधिकतर झगड़े गरीब देशों में होते हैं, खास करके उन क्षेत्रों में जो क्षेत्र कुशासित होते हैं या फिर जहां पर जातिवादी और धार्मिक संप्रदायों के मध्य शक्ति एवं धन दौलत न्याय संगत रूप से वितरित नहीं है. So the best way to prevent conflict is to promote political arrangements in which all groups are fairly represented, combined with the human rights, minority rights and broad-based economic development. इसलिए झगड़ों को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका ऐसे राजनीतिक व्यवस्था को उत्साहित करना है जिसमें सारे वर्गों को न्याय संगत रूप से प्रतिनिधित्व शामिल हो और इसके साथ साथ मानवीय अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार एवं विस्तृत आधार वाली आर्थिक उन्नति हो. The third fundamental freedom is one that is not clearly identified in the United Nations Charter because in 1945 our founders could scarcely imagine that it would ever be threatened. तीसरी मौलिक स्वतंत्रता वह है जिसे संयुक्त राष्ट्र के शासन पत्र में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया क्योंकि 1945 में हमारे संस्थापक इस बात का मुश्किल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह खतरे में पड़ जाएगी. I mean the freedom of future generations to sustain their lives on this planet. और मेरे कहने का भाव यह है कि भावी पीढ़ियों के लिए इस ग्रह पर अपनी ज़िंदगी बनाए रखने की स्वतंत्रता. Even now, many of us have not understood how seriously that freedom is threatened. अभी भी हम में से बहुत लोग यह नहीं समझ सके कि यह स्वतंत्रता कितने गंभीर रूप से खतरे में है. If I could sum it up in one sentence, यदि मैं इसे एक वाक्य में सीमित कर सकता, I should say we are plundering our children's heritage to pay for our present unsustainable practices. तो मैं कह सकता हूँ कि हम अपने बच्चों की विरासत को लूट रहे हैं अपने उन आदतों पर खर्च करने के लिए जिनको बनाए रखना संभव नहीं है. We must preserve our forest, fisheries and the diversity of living species, all of which are close to collapsing under the pressure of human consumption and destruction. हमें अपने जंगलों, मछली क्षेत्र और सजीव प्रजातियों को सुरक्षित रखना चाहिए जो पूर्ण रूपेण मानवीय उपभोग एवं विनाश के दबाव के अधीन नष्ट होने के कगार पर हैं. In short, we need a new ethic of stewardship. We need a much better informed public and we need to take environmental costs and benefits fully into account in our economic policy decision. संक्षेप में हम आचार व्यवहार की नैतिकता के संबंध में एक नए नीति शास्त्र की आवश्यकता पर बल देते हैं. हमें एक ऐसी जनता की आवश्यकता है जिसे अच्छा ज्ञान प्राप्त है एवं हमें आर्थिक मामलों में वातावरण संबंधी लागत और लाभ को पूरी तरह ध्यान में रखने की ज़रूरत है. We need regulations and incentives to discourage pollutions and overconsumption of non-renewable resources and to encourage environment-friendly practices, and we need more accurate scientific data. हमें प्रदूषण एवं नॉन-रिन्यूएबल साधनों की अत्यधिक खपत को निरुत्साहित करने के लिए एवं वातावरण अनुकूल व्यवहार को उत्साहित करने के लिए नियमों एवं प्रोत्साहन की ज़रूरत है और हमें और ज़्यादा शुद्ध वैज्ञानिक आंकड़ों की ज़रूरत है. Above all,
We need to remember that old African wisdom which I learned as a child, that the earth is not ours, it is treasure we hold in trust for our descendants. सबसे ज़्यादा हमें एक पुरानी अफ्रीकी कहावत याद रखने की ज़रूरत है जो मैंने बचपन में सीखी थी। यह पृथ्वी हमारी नहीं है, यह एक खजाना है जो हम अपने वंशजों के लिए धरोहर के रूप में रखा हुआ है। Those are the problems and the tasks which affect everyday lives of our people. यही समस्याएं एवं कार्य है जो हम लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। It is on how we handle them that the utility of the United Nations will be just. हम इनके साथ कैसे पेश आते हैं, इसी विषय पर संयुक्त राष्ट्र की उपयोगिता को परखा जाएगा। If we lose sight of the point, the United Nations will have little or no role to play in the 21st century. यदि हम इस बात को भूल जाएंगे तो 21वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका नामात्र रह जाएगी। Let us never forget that our organization was founded in the name of we the people. हम इस बात को कभी ना भूलें कि हमारे संगठन की स्थापना हम लोग के नाम पर हुई है। We are at the service of the world's people. हम संसार के लोगों की सेवा में हैं and we must listen to them. इसलिए हमें उनकी बात ज़रूर सुननी ही पड़ेगी। They are telling us that our past achievements are not enough. वे हमें कह रहे हैं कि हमारी पिछली उपलब्धियां काफ़ी नहीं हैं। They are telling us we must do more and do it better. वे हमें कह रहे हैं कि हमें अवश्य ही और ज़्यादा काम करना चाहिए और वह भी बेहतर ढंग से। So students, I hope that you will watch this video till end. In my next video, I am going to upload an online test based on this chapter. So see you next time with a new topic. Till then, goodbye. Have a nice day.